Good morning, my dear students. Good morning, my dear students. Myself Saurabh Srivastava started going to teach you today civics chapter number 4, and the name of this chapter is which I am going to discuss is that key elements of a democratic government, which I am going to discuss. And today is the first part and last part of this chapter. It means today in only one video I am discussing about I am going to discussing about key elements of the democratic government. So before you watch this video, firstly you like, share and subscribe my YouTube channel. Let's crack choppers. Don't forget like, share and subscribe my YouTube channel. So let's begin the class. Before we discuss about key elements of the democracy, firstly I want to tell you that what is a democracy. ठीक है, तो about democracy I want to tell you that democracy is a form of government where representative is elected by the people. क्या मैंने बोला? Democracy is a form of government where representative is elected by the people of that country is called democracy. तो democracy हम समझ चुके हैं, and some key elements I have already discussed in chapter 3 and chapter 4. I am going to discuss about key elements of the democratic government. So let's begin the class line by line. आप ध्यान से सुनिएगा. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली ये क्लास बहुत एंजॉयमेंट वाली होने वाली है और आपको समझ में भी आएगा. In previous chapter we discussed the need of having a government and learn about various forms of the government. In previous chapter I have discussed the three main types of the government: central government, state government and municipality and gram panchayat. I have discussed. But in this chapter I am going to discuss in front of you that what is the democratic government. First topic which I am going to discuss is that what is the democratic government. क्या मैंने बोला? What is a democratic government? The question is what is democratic government, which I am going to discuss. So my dear student, listen carefully. Abraham Lincoln, one of the greatest president of the USA. अब्राहम लिंकन जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक बहुत ही महान प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने डिफाइन किया था डेमोक्रेसी को कुछ ऐसे. इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल. डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल. मतलब लोगों के लिए सरकार, लोगों के द्वारा एंड लोगों के लिए. ठीक है ना? गवर्नमेंट, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए. दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं. इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपल. ठीक है. द एडल्ट सिटीजन चूज द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम एमंग देमसेल्व्स. जो लोग होते हैं उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब ऐसे सारे लोग जो 18 साल या 18 साल से ऊपर की एज को पूरा कर चुके हैं, सभी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए वोट करते हैं. आई होप चीजें समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए. सो देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल. सो लोगों की गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बनाई जाती है. अगेन द चूजन मेंबर टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपुल. लोगों की भलाई के लिए वो सरकार काम करती है. यही डेमोक्रेसी की एक सबसे अच्छी पहचान है. दिस इज गवर्नमेंट फॉर द पीपुल. और ये जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए होती है. तो व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? ये क्या हुआ? कंप्लीट हुआ. अब देखिए दूसरा टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इंपॉर्टेंट feature of democratic government. And in these topic I firstly discuss about one thing. What is participation? In a democratic country the people participate in making the laws. जो लोग होते हैं वो जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे रूल रेगुलेशन बनाते हैं
उसको चुनने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। गवर्नमेंट जो होती है एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इलेक्ट की जाती है। इट मीन्स इन यूएसए द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड ओनली फॉर 4 years, बट इन लाइक इंडिया लाइक कंट्री गवर्नमेंट इज चूज फॉर 5 years। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन। जब ये समय समाप्त हो जाता है तो इलेक्शन फिर से कराए जाते हैं। इफ द पीपुल आर सेटिस्फाई, जब लोग उस गवर्नमेंट से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो उस गवर्नमेंट को फिर से री इलेक्ट करते हैं। इफ नॉट दे में इलेक्ट अनदर गवर्नमेंट। अगर वो सेटिस्फाई नहीं रहते हैं तो वो दूसरे गवर्नमेंट को चूज करते हैं। दिस गिव्स द पीपुल द पावर टू चेंज अ गवर्नमेंट दैट कैन नॉट सेटिस्फाई देम। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट उन्होंने चुनी थी वो गवर्नमेंट उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द पीपुल कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज थ्रू आउट डिफरेंट मीडिया। ठीक है ना, लोग जो होते हैं वो अपने व्यूज को अलग अलग तरीकों से दिखाते हैं। जैसे कि इस समय सोशल मीडिया चलता है, न्यूज़पेपर चलता है, टेलीविजन चलता है, फिल्म चलती हैं, इस तरह से। दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट। वो अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन करते हैं, सच एज रैलीज निकालते हैं, सिग्नेचर करते हैं, कैंपेन करते हैं, स्टिकर्स निकालते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोटेस्ट करने के तरीके हैं जिससे हम गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। अब फ्रीडम, अगला टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रीडम। फ्रीडम, फ्रीडम, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आई होप, लग रहा है ये क्लास आगे नहीं चल पाएगी क्योंकि प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते। फ्रीडम टॉपिक जो है मैं अगली क्लास में